Good morning, students. Myself Minakshi, your bio teacher from Sanskar Valley Public School. So, yesterday we have completed our first chapter along with the NCERT question discussion. So, today we're going to start our chapter 2, biological classification. So, in the last class, we have discussed how why organism has been classified, isn't it? So, what is the need for classification? We also discussed. So, there are different types of classification have been given in the recent times. One is artificial, the second one is natural, and one is phylogenetic. So artificial system is highly useful in the field for quick identification of the organism because it utilizes only 1 to 2 morphological traits. ठीक है, and it may use habit and habitat as a criteria for grouping the organism. Clear? And in case of natural system often employs artificial keys for quick identification. For example, it employs more morphological characteristics. Like in artificial, we have characterized only 1 to 2 morphological traits, but in case of natural system, we employ several morphological characters for grouping the organism. Clear? And it you can say कि it never uses the habit and habitat for the criteria of classification because it include morphology, anatomy, taxonomy, molecular systematics. So it gives information about various natural relationship among the organism. ठीक है. And what about the phylogenetic system of classification? The phylogenetic system is based on evolution of different traits. यू कैन से बिकॉज फॉसिल्स जो हैं वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं टू स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास वेयर वी हैव स्टडीड कि रेप्टाइल कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ईव्स कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, क्या उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थी, है ना. तो फाइलोजेनेटिक में हम बेसिकली फॉसिल्स को स्टडी करके हम जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप इस चैप्टर में हमने लाइनस के बारे में भी पढ़ा था कि कैरोलस लाइनस जो है जिन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. ही ऑल्सो गिवन टू किंगडम क्लासिफिकेशन. सो इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लाइनियस. ठीक है. ही फाउंड 2 किंगडम्स. वन इज किंगडम प्लांटे एंड अदर इज एनिमिलिया. One is Plantae, other is Animalia. The member of the kingdom Plantae, you know that they have cell wall, they have you can say presence of large central vacuole, isn't it? In case of animal, they can move from one place to the other. They have centrioles for cell division. So there are a lot of characteristics which make them to divide these organism into 2 kingdom. उसके बाद फिर 3 kingdom classification आई and it was given by Haeckel अराउंड 1880s या 1866 के अराउंड. ठीक है. सो हैकल ने ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें उन्होंने एक और मेंबर को ऐड किया था एनिमल और प्लांट के अलावा, प्रोटिस्टा. ठीक है. ही गिवन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. वन इज प्लांटे, सेकेंड इज एनिमिलिया एंड द थर्ड वन इज प्रोटिस्टा. ठीक है. सो नेक्स्ट उसके बाद आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जनरली उसमें एक और सदस्य को ऐड किया गया. इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड. इन 1950s. ठीक है. एंड द मेंबर विच वॉज इंक्लूडेड इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज मोनेरा. सो देर आर 4 मेंबर्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया. ठीक है. जो फंजाई थी उसको प्लांट के साथ ही रखा हुआ था अभी. फिर आई 5 किंगडम classification. It was given by R.H. Whittaker. He was an American taxonomist and he divided the organism into 5 kingdoms. One is Monera, next is Protista, then fungi, 4th Plantae, and the 5th is Animalia. Clear? So he divided the organism into 5 kingdoms. Clear? Monera, Protista, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया. सो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्होंने 5 डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड किए, ये किस उस बेसिस पे किए इन्होंने? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है. सो ऑल दीज क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए R.H. Whittaker ने इनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया. ठीक है. सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker.
ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल उनकी कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है. सो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक ही हैज़ टेकन इनटू द अकाउंट. क्लियर. सो अभी अब यहाँ देखिए कि इन्होंने बता रखा है कि मेन जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो भी मैंने आपको बताई है ना. एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे इस बार, क्योंकि हर एक किंगडम को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. लाइक पहले हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमिलिया. क्लियर. सो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द मोनेरा. इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे प्रोकैरियोट्स हैं. इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जितने भी हैं ये सब बैक्टीरिया हैं. दे आर included in the kingdom Monera. They are decomposers, they are mineralizers, sorry, they are mineralizers. So because they fixes the mineral into the soil, है ना. ये सारे यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं. सो यू कैन सी ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इनटू मोनेरा. ठीक है. प्रोटिस्टा में आपको जितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे. ठीक है. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू विल फाइंड इन प्रोटिस्टा. क्लियर. और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपको जैसे जैसे आप हायर क्लासेस उसमें जाएंगे किंगडम्स में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी. क्लियर. तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियन अमीबा किंगडम विच लैक सेल वॉल. क्लियर. सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट योर किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर सम टाइम कि बैक्टीरिया आएंगे इसके अंदर जितने यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. येस, दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना. बहुत मतलब आप कह सकते हो कि हर जगह मिलेंगे आपको ये. बेसिकली आप कहीं चले जाओ, पानी में, हवा में. ठीक है. सो दे आर फाउंड एवरीवेयर. नेक्स्ट, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर आप एक मुट्ठी सॉइल उठाते हो तो उसके अंदर आपको कई सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे. ठीक है. बैक्टीरिया दे आर लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, देन दे आर फाउंड इन स्नो, डीप ओशंस, एंड अकर्स एवरीवेयर विद अ फ्यू लाइफ फॉर्म्स वेयर कैन सर्वाइव. है ना. हर जगह मिलेंगे आपको जहाँ पे छोटी छोटी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे. क्लियर बेटा. येस. नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट. येस, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे लिव एज अ पैरासाइट. ठीक है. अब बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. येस, बैक्टीरिया को हम 4 डिफरेंट शेप्स में हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहला आता है कोकस. और कोकस की शेप होती है स्पेरिकल. कोकस की शेप कैसी होती है? स्पेरिकल इन नेचर. ठीक है. सो उसके बेसिस पे हम इसको मोनोकोकस बोल सकते हैं जब ये सिंगल प्रेजेंट हो, मोनोकोकस. अगर ये पेयर में प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं डिप्लोकोकस, विच आर द 2 बैक्टीरिया इन अ ग्रुप, डिप्लोकोकस. अगर ये 4 एक साथ हैं हम इनको बोलते हैं टेट्राकोकस. और अगर ये चेन में है तो हम इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. और अगर ये ग्रेप्स की तरह गुच्छे में है इस तरह तो हम इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस. क्लियर. सो कोकस मीन्स स्पेरिकल. वो डिपेंड करता है वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, चेन में है या ग्रुप में है. क्लियर. नेक्स्ट इज बेसिलाई. तो बेसिलस मतलब रॉड शेप. ठीक है. बेसिलस मतलब रॉड शेप. एंड डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं इसमें भी. 2 रॉड्स एक साथ होंगी तो डिप्लोबेसिलस. और अगर ये एक स्टैक की तरह अरेंज है तो हम इसको पैलिसेड बेसिलस बोलेंगे. और अगर ये चेन में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैलिसेड. आप समझे? पैलिसेड का मतलब होता है इस तरह से जो रॉड्स आपस में कनेक्शन में हो, इस तरह से. ठीक है. इसको बोलते हैं पैलिसेड बेसिलस. स्टैक्स, एक स्टैक फॉर्म करते हैं. देन स्ट्रेप्टोबेसिलाई जो चेन में हो, जैसे हमने ये किया था ना, इसी तरह रॉड अगर चेन में हो तो वो हमारा हो गया स्ट्रेप्टोबेसिलाई. क्लियर. नेक्स्ट है, अब देखेंगे इस शेप में कॉमा शेप. कॉमा शेप क्या होता है? ये देखिए इधर लास्ट में दे रखा है कॉमा. जैसे आप नोटबुक में कॉमा लगाते हैं सेम वही. तो कॉमा शेप इसमें आता है विब्रियो कॉलिरे. विब्रियो कॉलिरे जो बैक्टीरिया है इट कॉजेज कॉलेरा इन ह्यूमन
बींग्स। कॉलेरा किससे होता है? कॉलेरा किससे होता है? इट इज़ spread through a bacteria by drinking the water which is unfit for the drinking, which is contaminated with vibrio cholerae. ठीक है, हेजा बोलते हैं इसको. नेक्स्ट स्पाइरिला. स्पाइरिलम क्या है? ये एक आप कह सकते हो स्प्रिंग जिसकी फॉर्म में होते हैं. बैक्टीरिया इज कॉल्ड लाइक अ कॉर्क स्क्रू, स्प्रिंग की फॉर्म में. एंड इसमें एग्रीगेशन नहीं होता है, आप देख सकते हैं. ठीक है, स्पाइरल शेप में होते हैं ये बैक्टीरिया. सो 4 शेप हो गई. वन इज कॉकस, बैसिलस, स्पाइरिला एंड विब्रियो. ठीक है, अब बैक्टीरिया के पास अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, है ना. अब एक चीज़ मैं आपको उससे पहले बताऊंगी कि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो इनकी मोटिलिटी कराता है. मोटिलिटी यानी मूवमेंट. दे कंटेन अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेला. और इसी फ्लैजेला की वजह से इसको डिफरेंट क्लास में करेक्टराइज किया गया है. ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, what is flagella? Flagella is a thread-like structure which is present in the bacteria which helps in the motility. Motility यानी movement. ठीक है, सो फ्लैजेला के बेसिस पे वो प्रेजेंट है यानी बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया. सबसे पहले ए ट्राइकस. क्या है? ए ट्राइकस में फ्लैजेला एब्सेंट होता है. सेकेंड इज मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. जैसे सपोज ये बैक्टीरिया है, ये फ्लैजेला प्रेजेंट, दिस इज मोनोट्राइकस. ठीक है, ये रहा आपका बैक्टीरिया, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, इस ए ट्राइकस. नेक्स्ट इज एम्फीट्राइकस. एम्फी का मतलब होता है बोथ, दो, तो ये दोनों एंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस. देन नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस का मतलब होता है एक जगह बहुत सारा बंच होना, so many flagella at one end, that is Lophotrichus. next is cephalotrichus का मतलब होता है दोनों एंड पे फ्लैजेला का गुच्छा. ठीक है, ये देखो दोनों एंड पे, सो इसको हम बोलेंगे cephalotrichus. लोफो में क्या था? एक एंड पे था. क्लियर. नेक्स्ट इज पेरीट्राइकस का मतलब होता है बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे हर जगह, इधर ये देखिए इस तरह से फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम पेरीट्राइकस. क्लियर. सो बेस्ड ऑन फ्लैजेला द बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल. किस तरह की सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया जाता है. वन इज ग्राम पॉजिटिव, द अदर इज ग्राम नेगेटिव. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में 70 to 80% होती है. क्लियर. और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्योंकि इसकी वॉल जो है वो डबल लेयर होती है. ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है. क्लियर हो गया ये. सेकेंड, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो डबल लेयर है, उसमें भी पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है, 10 to 20%. लेकिन उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन या लिपिड मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके अंदर लिपिड की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और उसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा यानी 20 to 30% होती है. और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इट इज़ द एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, समझ में आया. सो ग्राम पॉजिटिव में कितनी लेयर्स है? सिंगल लेयर है, और ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर है. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है और उसके बाहर होती है एक आउटर मेम्ब्रेन. क्लियर है बेटा. सो ये बेस्ड ऑन वॉल इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2. अब ये जो बैक्टीरिया की जो सेल है बेसिकली इसमें बाहर एक सेल एनवलप प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल एनवलप में आप कह सकते हो कि सेल वॉल भी आएगी. एक आप कह सकते हो कैप्सूल एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया. टू यू कैन से कि अगर जब कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे जो WBC सेल हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं. तो ये अगर जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो इस फिनोमेना को स्किप कर जाता है. ठीक है, हमारे सेल फिर उसको एनगल्फ नहीं कर पाते, तो इट गिविंग प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल. क्लियर. सो सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. देन बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव साइटोप्लाज्म. क्लियर. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव राइबोसोम विच इज ऑफ 70S टाइप. And bacteria do not contain nucleus.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इंस्टेड इट हैज़ न्यूक्लियोइड। ठीक है, समझ गए? बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्लियर? अब ये जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है यूकैरियोटिक में, दे आर वेरी यू कैन से कि नॉट हैविंग दैट मच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सो कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेंज में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया के। कुछ अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, यूजिंग केमिकल्स। अगर सनलाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं, अगर वो केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, सो वास्ट मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बहुत सारे अमाउंट में जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना। सो एंड बैक्टीरिया रेप्लिकेट कैसे करेगा या रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? बाय द बाइनरी फ्यूजन, या स्पोर फॉर्मेशन करेगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बाइनरी फ्यूजन यू ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड सेल गेट सेपरेटेड इनटू 2। एंड स्पोर फॉर्मेशन में आपको पता है कि जो सेल्स हैं वो स्पोर बनाते हैं, है ना। बैक्टीरिया क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा, विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर विच कैन ईजिली टॉलरेट अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तो वो स्पोर बनाता है। नेक्स्ट नंबर 3, बैक्टीरिया अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। Since it is a unicellular microorganism prokaryotic, they also undergo sexual reproduction, जिसमें कि famous method है conjugation। ठीक है, they form a conjugation tube between two cell and this is how the sexual reproduction takes place। ठीक है, समझ में आया बेटा? इनके अंदर जनरली थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया जो है जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाते हैं जो बैक्टीरिया, उसमें ये फिनोमेना आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। जो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर है उनको हम बोलते हैं F+। उनको हम क्या बोलते हैं? F+। ये होते हैं मेल सेल। क्या होते हैं ये? मेल सेल। और जिनके अंदर ये फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता वो होती हैं फीमेल सेल। ठीक है, दे आर कॉल्ड F- सेल। तो इन F+ और F- सेल के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है ये फीमेल F- में ट्रांसफर हो जाता है, तो दोनों क्या बन जाएंगे? दोनों क्या बनेंगे? ऑब्वियसली F+, है ना, फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो क्लास के ऑर्गेनिज्म आते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, 1 सेकेंड, ओके, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम बेटा, स्टे सेफ।